we'll see the Raspberry Pi. So how we can connect the devices and how to perform the experiments on these devices and um, what are the sensors connected to this device through wirelessly, that is by using nodes. Then suppose I want to interface some input output devices, how to interface this input output devices, how to write code, then how to write compile and and run the codes for this RPi. So we will see right now. So basically, Raspberry Pi is a single board computer. As you know, this is a small computer. In that, ARM processor is there. Ethernet port is there. You can connect Wi-Fi, Bluetooth for communication. Then HDMI port is there. DSI display is there. CSI camera port is there. Then there is a stereo audio and composed video port is there. Four USB ports are there, and it has 40 pin GPIOs header is there. So I'll show you the pictures of this one. As you know, this Raspberry Pi. So this is so this Raspberry Pi you can use as an desktop programming, networking, web development, and then embedded system programming. You can perform the Internet of Things, robotics, automations, and you can use as an full embedded domain for this Raspberry Pi. So as you are able to see this picture, so this is the GPIOs, 40 pin GPIOs here of this Raspberry Pi. Then this Ethernet connector is there. Then four ports are there. Four ports are there. Then this you can able to see this is the memory card where the OS is installed, and so this Raspberry Pi will boot up this memory card. Okay, and this one is the supply, power supply. You can connect the adapter, 5-volt adapter. This is a C type actually connector is there. This C type. This two ports are there. This is the HDMI ports. For HDMI ports, this is a mini HDMI port. So one there is one converter, that is a mini HDMI to HDMI connector. So you can connect for display, or projector or display. So this audio connector is there. This is an camera connector. Uh, and then four USB ports are there. So this is a Raspberry Pi board. Comes to the features and specifications, the SoC that is Broadcom BCM 2711B0 quad core processor is there in this one, that is ARM architecture, which is a 64-bit. It has an GPU, graphical processor unit, that is Broadcom video core. Then it has an RAM. It's come with 1 GB, 2 GB, or 4 GB. Then it has a wireless um, Wi-Fi, Bluetooth 5.0. It has an gigabyte Ethernet ports. Then it has an power over Ethernet hat is also there. Might be you have observed in this one. So this is the power on Ethernet header is there. This one. So actually, what is this power on
Ethernet means might be you have seen the cameras for surveillance systems. So they are having PoE powered, you know. So only by using the Ethernet cable, the power will get to the camera. Like these devices are there, some switches are there, PoE switches are there. So there is for that devices, for working of that devices, there is no need to connect extra power. So through Ethernet itself, the device get powered. So it's work on this 5 volt supply. Then it has an panel, LCD panel camera. This micro SD card, you can connect the micro SD cards. So this one. So this is very short description of about this Raspberry Pi. So let's move towards the practical. Okay. So now I will share my screen. Before going to that one, how I'll perform this experiments. That first of all, I will show the setup. So what I'm going to do and what are the things I have to show you. Let's me share my camera. So before going to do the practicals on this Raspberry Pi, I will show you the hardware first of all. So this is Raspberry Pi. This section is the power supply section, which having 5 volt, 3 volt, and ground. So this section is LCD interface. This colorful LCD interface. This one. Then comes to the this this section. This is USB interface. So RxTX is there, and this USB port is there, so that you can interface to your PC. Then this section, this is the motor interface driver is there, L293D. This section. So here you can interface डीसी मोटर और स्टेपर मोटर. ये अभी जो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक आरपाई के हार्डवेयर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि विच इज यूजफुल फॉर आईओटी एप्लीकेशंस. ठीक है. तो इस प्रोडक्ट का नाम है आईओटी बिल्डर. दैट इज अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म. स्टेपर मोटर इंटरफेस. देन दिस two input output switches, sorry, two input switches, this two, and this one is the output, this LEDs. So these are the LEDs, 8 LEDs is there. Come to this section. So this is ADC interface section. Here you will get analog channels, A0 to A5. It has RTD connection as well, RTD, and 4 to 20 milliampere, as you know. So this is most useful in industry. And this connector having plus 3 volts and ground. This is come to this one, this RS485 interface. You can connect RS485 device over here. Now come to this section. This one, actually this is a gateway. This is a gateway. Here you can connect the GSM, and this one is the optional one in our hardware. If you want to purchase, then you can purchase externally this gateway. So that's why the hardware is not there. Yesterday I have shown one picture of this one, this hardware. तो इन दैट वहां पर एक जीएसएम था. यहाँ पर शायद कल आपने यदि देखा होगा मॉर्निंग सेशन में, कल की बात कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पर एक जीएसएम था, है ना, जिसमें सिम लगी थी. सो दैट इज कॉल्ड अ गेटवे. तो ये है ऑप्शनल रखा है हमने इसमें. एंड कम्स टू दिस सेक्शन. दिस वन इज द ZigBee कोऑर्डिनेटर. तो ये है ZigBee कोऑर्डिनेटर. It is connected with this USB to the Raspberry Pi. तो दूसरा एंड जो है
वो रास्पबेरी पाई में कनेक्ट हो रहा है। एंड this section, this one is the GPIOs. Some GPIOs we have taken out from the Raspberry Pi. uh, अब यदि आप इन इन यदि यस हम सर, यस सर। ये जो हार्डवेयर जितना भी हमने जो डेवलप किया है, तो इसकी जो आरपाइस की जो जितने भी जीपीआईओस जो हैं वो सब हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं, है ना। अब आप ये सोचोगे कि ये Excuse me, sir. हाँ हाँ Uh, हाँ few minutes back you said you have taken GPIO from the this board. What does exactly it mean? You have taken pin connection from this, or you are not using this GPIO? नो नो, हमने जो जीपीआईओस जो लिए हैं, वी हैव टेकन द जीपीआईओस ऑफ दिस रास्पबेरी पाई। ओके, जो रास्पबेरी पाई जो ये जो आपने आपके पास में ये जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये वाला, हाँ, तो ये जितने भी ये जो कनेक्टर्स में जीपीआईओस हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट जीपीआईओस, वो इस केबल के थ्रू, ये जो केबल है, हाँ इस जी। केबल के थ्रू अंदर हमने एक सर्किटरी डेवलप की है। तो इंटरनली इट्स गोज टू दिस डिवाइसेस, जैसे स्टेपर मोटर ड्राइवर पे गया, एलसीडी के इनपुट आउटपुट्स पे गए, इंटरनली दिस एलईडीज को कनेक्ट किया है ना। और कुछ जीपीआईओस फिर यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो इन जीपीआई, हाँ, यहाँ जो हाँ? जीपीआई जो इनको यूज नहीं कर रही या यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मॉर्निंग सेशन में देखे थे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, है ना। जैसे वो जो डिफरेंट मॉड्यूल्स देखे थे, जिगबी देखा था, ब्लूटूथ देखा था, वाईफाई, तो इस टाइप्स के मॉड्यूल्स जो हैं हम इसको इंटरफेस कर सकते हैं इस हार्डवेयर के साथ में। ये जो है ना, सपोज ये मॉड्यूल आपको इंटरफेस करना है, तो यहाँ पर ये जो सॉकेट दिख रहा है, हाँ जी, हाँ जी। सॉकेट विद द हेल्प ऑफ एफआरसी केबल you can connect such types of module, external modules to this RPi. Got it. So Got that's it, why we sir. have, Thank you. हाँ हाँ। तो ये एक हार्डवेयर है पूरा, जहाँ पर हमने पूरे इसके इनपुट आउटपुट्स निकाल के यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग पर्पस, जीपीआईओस को एक्सेस करना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, देन कोई यदि आपका खुद का आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो वो डेवलप करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो जीपीआईओस है वो एक्सेसिबल है, ये दिस जीपीआईओस है ना, ये एक्सेसिबल है। सो इजीली यू कैन इंटरफेस योर ओन हार्डवेयर टू दिस आरपाई। तो अब जितना भी मैं स्क्रीन पे आपको जो भी दिखाई देगा वो मैं आरपाई पे वर्क कर रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर एक यूएसबी वायरलेस कीबोर्ड माउस मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। और जितने भी अभी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर रन करूंगा, सो दैट विल रन ऑन दिस आईओटी बिल्डर रास्पबेरी पाई, ओके, 6205 आईओटी बिल्डर, ये कैमरे में आप देख रहे हो। सो इन दिस we have developed some experiments, some of the GUI based experiments, कुछ हमने GUI based experiments किए हैं, बनाए हैं इसमें, and some of the Python based C, C++, Qt, इन पे हमने कुछ applications बनाए हुए हैं। so कोई एक example लेके मैं आपको बता रहा हूँ मैं, so how to work on this one. Before going to that one, so most of the people I think they are working on this Linux platform. Maybe are you familiar with this Linux platform? Linux की जब हम बात करते हैं, तो जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसा ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है वो अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल might be you heard about the Ubuntu, might be you heard about the Red Hat Linux, might be you heard about Fedora, then SUSE. All these are the flavors of the Linux, है ना। तो ये सब फ्लेवर्स है लिनक्स के। अब जो रास्पबेरी पाई में जो है वो डेबियन का फ्लेवर है ना। डेबियन में रास्पबेरी जो है
रास्बियन ये इसमें लिनक्स है, रास्बियन है ना। तो ये डेबियन के फ्लेवर में रास्बियन एक ये ओएस इसमें है, which is an official Linux for this Raspberry Pi. Comes to the some basic fundamentals of this Linux. Actually होता क्या है कि Linux is an free version है ना, free. कोई इसमें लाइसेंस नहीं होता है जैसे विंडोज वगैरह में लाइसेंस की बात करते हैं हम। ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स रहने की वजह से इसमें डेवलपमेंट जो है कम्युनिटी रहती है जो कि कर्नल को डेवलप करते हैं, जैसे जैसे नए नए हार्डवेयर आते रहते हैं उस हिसाब से जो लिनक्स को अपग्रेड करते रहते हैं। तो जब भी हम ये जो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे so you will find the different kinds of versions. अब इस वर्जन में भी कुछ जब हम वर्जन इसको यदि देखेंगे तो कुछ इसमें कोई प्रोडक्ट वाला जो वर्जन रहता है, कोई अनस्टेबल रहता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्जन। सो आप इतना डिटेल में नहीं जाते हैं हम पहले देखते हैं कि हम कुछ कमांड्स को कैसे रन करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जब लिनक्स आया था सो इट्स एन कमांड लाइन इंटरफेस था पहले, है ना। तो कमांड से ही आपको जो भी कुछ ऑपरेट करना है आपको वो कमांड लाइन से ही एक टर्मिनल विंडो पे आपको कुछ कीबोर्ड से कमांड्स टाइप करके ही आप उसको उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमारे विंडोज में हम माउस क्लिक इस पे डबल क्लिक करके कोई भी एक वर्ड फाइल कुछ ओपन करना है, पिक्चर्स ओपन करना है, एक सिंगल क्लिक से हम ओपन करते हैं। बट पहले लिनक्स ऐसा नहीं था, पहले कमांड लाइन इंटरफेस से ही वो पूरा ऑपरेट होता था। बट नाउ डेज यू विल गेट द ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स के थ्रू आप उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने पेन ड्राइव यदि मुझे लगाना है विंडोज में तो सिंपली मैं एक पेन ड्राइव लगाता हूँ और उसका जो कंटेंट्स यदि मुझे चाहिए तो आसानी से मैं उसको ड्राइव में ओपन करता हूँ और वॉट एवर द डाटा मुझे कॉपी करना है या फिर उसमें से कुछ सिस्टम पे ट्रांसफर करना है तो आसानी से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कॉपी पेस्ट करके ये यूज करता हूँ। बट इन लिनक्स before right now right now you can easily you will get the GUI for that one. अभी जो लिनक्स आ रहे हैं वो आसानी से आप उसमें कॉपी पेस्ट या फिर ड्राइव आपकी दिख जाती है। बट बिफोर दैट इट वर्क्स ऑन द कमांड लाइन। अब बेसिकली यदि कमांड यदि आपको चलाना है तो इट हैज एन टर्मिनल, ये कि शायद विंडो आपको दिख रहा होगा, ये दिस इज कॉल्ड एन टर्मिनल, है ना। ये टर्मिनल पे ही जितना भी हम कुछ टाइप करेंगे वो टर्मिनल पे टाइप करेंगे टर्मिनल से। अब इसकी यदि हम डायरेक्टरी देखेंगे फाइल सिस्टम्स कैसी होती हैं, यदि हम ls करते हैं, ls में लिस्ट फाइल, सो हियर यू विल गेट जैसे अभी हमारे इसमें सी ड्राइव, ई ड्राइव, विंडोज में सी ड्राइव, ई ड्राइव, इस प्रकार से ड्राइव होते हैं। बट लिनक्स में इन फोल्डर्स को ही डायरेक्टरी कहते हैं ना। सो इन दिस इट्स कॉल्ड डायरेक्टरी, है ना। जितना भी हम जो ड्राइव्स है या फिर फाइल्स है उनको डायरेक्टरी कहते हैं इस लिनक्स ओएस में। आप मान लो सपोज आई वांट टू, इफ यू नो द डॉस कमांड्स, कुछ डॉट्स कमांड्स भी यहाँ पर आप उसको चला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज द डायरेक्टरी, मुझे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना है, सो देयर इज सम कमांड, सो लाइक cd। अब यहाँ पर जो जितने ब्लू इसमें जो दिखाई दे रहे होंगे शायद आपको, जितने भी ब्लू है वो एक डायरेक्टरी है। सो यू कैन go to that directory with the help of cd, है ना, change a directory, downloads। so what I will write over here, downloads,
सो सी हियर, अभी मैं एक पाथ पे था, यहाँ से फिर मैंने कहाँ पर गया हूँ, मैं डाउनलोड्स पे गया हूँ। अब डाउनलोड्स पे कौन सी चीजें अवेलेबल है, सो दैट यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस ls कमांड। ओके, तो उसमें भी एक और एक डायरेक्टरी है। तो जो डायरेक्टरी है वो एक dsits फोल्डर है। तो वो ऐसे कंटेंट्स आप इसमें देख सकते हो। देन सपोज यू वांट टू मेक अ फोल्डर, सपोज एक आपको एक फोल्डर बनाना है, एक डायरेक्टरी बनाना है। सो mkdir सपोज टेस्ट, मैंने एक टेस्ट नाम से फोल्डर बनाया है। सो वेदर इट इज क्रिएटेड और नॉट यू कैन इजीली सी। यदि मैं ls करता हूं तो सी हियर इन द ब्लू स्क्रीन, इन द ब्लू वन, आप इसमें देख सकते हो कि एक टेस्ट नाम से एक ये फोल्डर बन चुका है। ओके, so like this you can perform or you can practice on this Linux. Okay, देखिए सबसे पहले अभी मैं जितना भी आपको अभी यहाँ दिख रहा है, मैं अभी होम पे हूँ, है ना। सो इसमें जो डायरेक्टरी होती है वो होम, रूट, देन etc dev, एक ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है इस लिनक्स में। ठीक है, अब हम फिलहाल डायरेक्टरी जो है कौन से डायरेक्टरी में है वो हम देख सकते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो pwd मैंने यहाँ लिखा है। तो राइट नाउ आई एम इन होम एंड होम में पाई एक ये डायरेक्टरी है, इसमें मैं फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ। इफ आई वांट टू गो टू द रूट, तो cd स्लैश, है ना, cd स्लैश मीन्स नाउ आई एम इन रूट डायरेक्टरी। ठीक है, सब अब रूट डायरेक्टरी में क्या होता है कि इट्स लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर विच हैविंग द फुल परमिशन टू परफॉर्म और टू मॉडिफाई द थिंग्स, है ना। तो जब भी हम रूट डायरेक्टरी में रहते हैं तो रूट डायरेक्टरी में हम हमें जो कमांड्स चलाने की फुल परमिशंस रहती हैं। और यदि हम होम डायरेक्टरी है तो होम डायरेक्टरी में हमें जो कुछ कमांड्स है, मोस्ट ऑफ द कमांड्स यू हैव टू परफॉर्म विथ sudo। जो भी हम कमांड्स चलाते हैं तो यू हैव टू राइट द sudo। इफ यू आर इन रूट देन देयर इज नो नीड टू राइट द sudo। ओके, सो डिफरेंस देखेंगे आप तो एक ये कि यहाँ पर एक इस साइन से देखेंगे आप, सबसे पहले तो हम ये होम डायरेक्टरी में थे, बट नाउ एज आई चेंज माई डायरेक्टरी सो इट्स स्लैश, इट्स रिफ्लेक्ट्स विद द स्लैश, एक ही स्लैश बता रहा है ना। सो नाउ आई मीन इन रूट डायरेक्टरी। अब इस रूट डायरेक्टरी में कौन कौन सी डायरेक्टरीज है यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ls कमांड। ठीक है, अब इस ls कमांड में देखेंगे आप तो बिन, बूट, होम, मीडिया, देन mnt, ऑल दीज आर द डायरेक्टरीज इन द रूट डायरेक्टरी। ठीक है, हर एक डायरेक्टरी का अलग अलग कुछ फंक्शंस होते हैं, सो दैट विल हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो ये सब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। ठीक है, इफ यू कम बैक टू दैट डायरेक्टरी तो हम cd डॉट डॉट करेंगे, cd home and no cd space two dots, now I'm in home directory। so जितनी भी मैंने कमांड्स लिखी वो मुझे क्लियर करना है, तो यू कैन राइट clrs, सॉरी clear।
तो जितनी भी मैंने कमांड्स जो राइट किए वो सारी क्लियर हो जाएगी। देन इसमें देख रहे हैं हम कि कौन सी डायरेक्टरी है। अब इफ यू वांट टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, तो विद द हेल्प ऑफ mkdir, that is a make directory space, suppose I will give nittr, okay, and enter. Just a minute, I have to come back to this one. Maybe. Fine. Now here I can create it. यदि मैं ls देखता हूँ तो मैं एक्चुअली मैं रूट पे था, तो रूट पे कोई डायरेक्टरी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो मुझे होम पे आना पड़ा, बैक टू द होम. So in home now I can create the directory mkdir space nittr. So nittr मैंने एक डायरेक्टरी बनाई. So whether it is created or not, so I can find out with the help of this ls command. So see here, you can see here this nittr. ठीक है, ये एक डायरेक्टरी बन गई है. Suppose you want to go, if you want to change to, or if you want to move to that directory, then cd nittr, then you are in right now in nittr directory. If you want to see what are the contents in that directory, just you put ls, so there is no any file in that nittr. So like this commands are there. Suppose if you want to write a code in that directory, so there are some editors. So there are some editors. With the help of editors, you can write the code in that editor. Let me check sudo edit test. Yes, okay. नाउ देखिए, मैंने अभी एक जी एडिट एक एडिटर है, उस एडिटर से उस कमांड से मैंने एक टेक्स्ट फाइल एक ओपन करी है. यहाँ पर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, सपोज सी का कोड लिख रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड cdio.h. then void main opening and closing braces, and I'll write over here printf hello world. ठीक है, ये सिंपल सा मैंने एक कोड लिखा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का. ठीक है, सो आई विल सेव दिस वन एंड क्लोज कर रहा हूँ. लेट मी चेक. देखिए, अब यदि मैं ls करता हूँ, ls, तो ये test.c नाम से एक फाइल बन गई है, राइट.
Now, if you want to um, compile this test.c, so there is a compiler, that is a GCC minus O. Suppose the executable file on by which name you have to execute it. Suppose test दे रहा हूं मैं test into the this is an executable file and source file. test1 दे देता हूं इसको and test.c. let me check. yes है ना. now ये कंपाइल हो गया है. ओके. कोड जो सी टेस्ट मैंने जो लिखा है test.c. so just a minute. मैं ये मैंने अभी जो बताया है एक मैंने कोड लिखा था test.c. सी का कोड लिखा हुआ है. अब उसको मैंने कंपाइल किया है. अब जितने भी अभी जो कमांड्स चला रहे हैं ना, ये कमांड लाइन पे चला रहे हैं और इस तरीके से ही इस लिनक्स पे वर्क करते हैं, है ना. अब मैं यदि ये एलएस करता हूं तो देखिए अब ये ग्रीन कलर का एक आपको test1 एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है ये. अब नाउ दिस फाइल, सो दिस फाइल इज एग्जीक्यूट फॉर योर कोड. कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? जो test.c में लिखा है. अब उसको रन करने के लिए मैं just a minute. राइट. देखिए अभी मैंने कोड में क्या लिखा था, सी कोड एक सिंपल एक हेलो वर्ल्ड मैंने टाइप किया था. एक सिंपल सा कोड है मेरा. माय स्क्रीन इज विजिबल. देखते हैं. यस सर. है ना. तो मैंने क्या लिखा था, एक सिंपल सा test.c एक सी फाइल बनाई है मैंने, सी प्रोग्राम की. और उसको जीसीसी एक कंपाइलर है, कंपाइलर यूज फॉर कंपाइल कोड. देन उससे मैंने सी कोड को कंपाइल किया और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनी test1 नाम से. ठीक है. तो ये जो test1 है वो test1 मैंने एक नाम दिया इसको test1. वो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जिस नाम से भी आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है. और फिर उसको रन किया मैंने sudo कमांड से. अब इसको हम यदि कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल हमारे माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग से, तो हम क्या करते हैं कि हम आईडी टूल में कोड लिखते हैं. राइट. कोड लिखने के बाद में हम उसको डिबग करके देखते हैं कि हाँ दैट कोड इज एरर फ्री. इफ इट इज एरर फ्री देन हेक्स फाइल जनरेट होती है. ठीक है. जो हेक्स फाइल जनरेट हुई है, अब वो हेक्स फाइल आपकी रेडी हो जाती है माइक्रो कंट्रोलर में डंप करने के लिए या फिर आपका कोड चेक करने के लिए. द सेम वे हम यदि इसको कोरिलेट करते हैं तो यहां पर मैंने एक test.c नाम से एक फाइल बनाई. I have compiled that file with the help of GCC compiler. GCC compiler से मैंने उसको कंपाइल किया. इफ इट इज सक्सेसफुली देन जो भी मैंने जो मुझे फाइल बनाना था, तो वो मैंने फाइल नेम जो बनाना था, मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम जो बनाना था वो test1 नाम दिया मैंने. और उस test1 से मेरी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है, अब उसको मुझे रन करना है. तो रन करने के लिए sudo ./ और test1 ये दिया. तो देखिए आप यहाँ पर देख सकोगे कि हेलो वर्ल्ड एक प्रिंट हो गया, जो कि मैंने उस फाइल में लिखा था. तो इस तरीके से हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, इस तरीके से हम उसको कंपाइल करते हैं, इस तरीके से हम फाइल बना के हमारा जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करते हैं ऑन दिस टर्मिनल. ठीक है. सर ये जो आपने sudo gedit कमांड्स जो आपने यूज की थी, उसके बाद सर आप समझा देंगे दोबारा से कि हाँ, और ये सर ये सी के लिए है तो पाइथन के लिए भी सेम रहेंगी क्या? देखिए पाइथन के लिए भी जैसे अभी जस्ट मैंने पाइथन भी ओपन किया था. देखिए अभी मैं फिर से आपको पहले वो जीसीसी वाला बता देता हूँ.
है ना, फिर मैं इस पे भी आता हूँ। अभी मैंने एक फाइल बनाई थी यहाँ पर, test.c, ठीक है। तो ये जो फाइल बनाई है मैंने एक एडिटर का यूज किया हुआ है। इसमें जी एडिट नाम से एक एडिटर है। एडिटर मतलब जहां पर आप आपका कोड लिख सकते हो, है ना। तो जैसे विंडोज में नोटपैड है, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। तो इसमें भी, लिनक्स में भी जी एडिट है, जीनोम है, वीआई एडिटर है। तो हर एक एडिटर का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। मैं दोनों भी चीजें आपको समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यदि जी एडिट यूज कर रहा हूँ, तो मैंने जो कमांड लिखी थी, अ, मैं एरो को अप डाउन करके मैं चेक कर सकता हूं कि मैंने अभी तक कौन सी कमांड्स चलाई हैं, ठीक है। sudo gedit test.c मैंने ये कमांड चलाई थी। तो मैं एक सी फाइल क्रिएट करने के लिए मैं अब इसमें कोई एक अलग नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी नाम से मैंने एक ये फाइल नेम दिया है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, जी एडिट को एडिटर का यूज करके एक सी प्रोग्राम बना रहा हूं। तो जो सी प्रोग्राम बनेगा वो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी नाम से रहेगा, ओके। तो मैंने इसको एंटर किया, तो ये जी एडिटर एक ओपन हो गया, राइट। अब यहाँ पर मैं जो भी मुझे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल मैं की कोड बना रहा हूँ। जैसे एक सी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, वो आपको सेम फॉलो करना है स्ट्रक्चर। मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पर। int suppose a equals to 5, int सिंपल सा एक कोड लिख रहा हूं मैं, equals to 2, int c। c equals to a plus b। printf that will work. Let me check. Now I will check the ls command. Yes, program first program dot c एक बन गया है। अब now I have to compile it. So for compiling this one, gcc, I will use the gcc dot o। So gcc हाइफन ओ, एंड कोई एक एग्जीक्यूटेबल फाइल कोई भी नाम दे सकता हूं मैं, कि उस नाम से मुझे एग्जीक्यूट करना है उस फाइल को। तो मैं कोई एक नाम दे देता हूँ, सपोज यही नाम दे देते हैं, चलो फर्स्ट प्रोग्राम 1। फर्स्ट प्रोग्राम
और जो सोर्स फाइल है वो सोर्स फाइल भी आपको देना होगा। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। So we can see over here ls, yes, first you can see over here ये ग्रीन कलर में ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी थी वो आपकी बन गई है। नाउ आई विल चेक रन दिस कोड। sudo minus sorry dot slash first program। See here, so sum equals to 7, ये मेरा एक प्रिंट हो गया है। I think it's visible for you everyone। I think मैम क्लियर है आपका डाउट? यस सर, यस सर, यस है ना? सर, थैंक यू सर। हाँ, तो मैंने इस प्रकार से मैं एक कोड लिख रहा हूँ, उस कोड को कंपाइल कर रहा हूँ और कंपाइल करके उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा जीसीसी को यूज करके एक जी एडिट को मैंने एक एडिटर यूज करके एक प्रोग्राम बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। राइट सर अगर हम पाइथन में अगर सर हाँ, बना रहे होते तो सेम रहेंगी राइट मैं पाइथन की भी बात कर लेता हूँ। देखिए पाइथन यदि आपको रन करना है तो डायरेक्टली फ्रॉम कमांड लाइन यू कैन ओपन आप कर सकते हो। यहाँ से मैं यदि पाइथन ओपन कर रहा हूँ टर्मिनल से, सो जस्ट यू हैव टू राइट पाइथन। सो मैं पाइथन के शेल पे आ गया हूँ मैं, है ना। ये जो तीन ये जो साइंस दिख रहे हैं ग्रेटर देन के, तो ये जो दिस रिप्रेजेंट्स योर पाइथन शेल, है ना। नाउ हियर अब मैं यहाँ पाइथन शेल पे हूँ जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा ये प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्रिंट सम टेक्स्ट, तो सिंपली प्रिंट साइंटेक। देखिए प्रिंट साइंटेक मैंने प्रिंट किया, तो आपको देखो साइंटेक ये प्रिंट हो गया। आई थिंक क्लियर है। तो अभी मैं जो हूँ पाइथन शेल पे ही मैं काम कर रहा हूँ अभी, है? जो कि पाइथन शेल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रही है इस शेल पे। नाउ इफ यू वांट टू गो द आईडी टूल, सो यू कैन ओपन दिस आईडी टूल। I think yes, Python ID tool is there. So here you can use the ID tool. ये वाला Python ID tool। ये ऑर्डिनो, जैसे ऑर्डिनो का भी प्रोग्राम आप कर सकते हो यहाँ इस पे। तो ये जितना भी अभी काम चल रहा है अभी अपना रास्पबेरी पाई पे ही हैं हम। आई थिंक अंडरस्टैंड मैम, चीजें क्लियर है। आप इस साइट पे जाओगे रास्पबेरी पाई के सॉफ्टवेयर में, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें ये डाउनलोड फॉर उबंटू, ठीक है, रास्पबेरी पाई के लिए लिनक्स प्लेटफॉर्म है ये। तो ये जब आप जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो इसका जो जिप फाइल है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, और जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको जो फोल्डर है वो फोल्डर एक मेमोरी कार्ड में पूरा कॉपी कर लेना। राइट, जब मेमोरी कार्ड में आप कॉपी कर लोगे उसके बाद में आपको क्या करना है कि वो मेमोरी कार्ड आपको आपके आरपाई में इंसर्ट करना है, पावर सप्लाई देना है उसको, और आपका यूएसबी कीबोर्ड माउस हो तो वो लगा लीजिए, या फिर वायरलेस हो तो डोंगल लगा लीजिए। वंस यू प्लग दिस वन वेलकम विंडो विल ओपन, एक वेलकम विंडो ओपन होगी, वेलकम विंडो, और उसमें उस ऑप्शन में दो तीन ऐसे ऑप्शंस आएंगे। आइदर इट विल आस्क
you want to install full version, either you want to use एक चेक बॉक्स रहते हैं वो, तो वो आप फुल वर्जन पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम चेक बॉक्स पे Okay. क्लिक करेंगे और फिर वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस जब शुरू होगा तो उसमें मतलब जितना भी हमारा जो फोल्डर है वो क्या होता है कि ये पूरा माउंट होता है अपने मेमोरी कार्ड पे। तो उससे एक जो फाइल सिस्टम्स है वो पूरी तैयार होती हैं, रेडी होती हैं, और उसके बाद में एक ऑप्शंस आता है आपको, जैसे आपका जहाँ पर भी हो, आप कौन से एरिया में हो, आप कलकत्ता रीजन या इंडिया जो भी है, तो वो आपको रिस्पेक्टिव रीजन्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से रीजन में हो। तो जैसे जनरली अपना कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई ये ऑप्शंस आते हैं उसमें, तो वो हमको सिलेक्ट करना होगा। और बहुत आसान है। नेक्स्ट जो भी पूछ रहा है कौन सा कीबोर्ड आपको इसमें वर्क करवाना है, 2 4 6 ऑप्शंस आते हैं इसमें, यूएस, यूके, तो जो भी आपको करना है वो उस पर सिलेक्ट कीजिए। लैंग्वेज आती है इसमें, लैंग्वेज पे सिलेक्ट कीजिए। और ऐसा स्टेप बाय स्टेप जब आप पूरा इसको फॉलो करते जाओगे तो पूरा कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसमें। पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपका एक पूरा ओएस आपका इंस्टॉल हो जाएगा और स्क्रीन पे आपको आरपाई का लोगो और वो सब सारी चीजें आपको दिखाई देगी। Okay, sir. Okay. Thank you, इस sir. तरीके से ये इंस्टॉल करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा थोड़ा बहुत शायद से। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, देखिए हमको यदि लिनक्स आरपाई पे इंस्टॉल करना है तो एक्चुअली 2 तरीके हैं। तो 2 तरीके आपके पास में यदि इमेज है ना, जैसे मेरे पास में अभी ये इसमें इमेज रखी है ना, ये जो है मेमोरी कार्ड में, ये मेरे पास में इसमें इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज से मुझे दूसरा इमेज यदि करना है तो मैं सिंपली ये जो मेमोरी कार्ड है एक कार्ड रीडर में लगाऊंगा, और विन डिस्क मैनेजर एक सॉफ्टवेयर आता है ना, विन डिस्क मैनेजर, तो उसमें इंसर्ट करूंगा। तो इसका जो भी ओएस है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इसको कॉपी करके कर सकते हैं आप। दूसरा ये है आप आरपाई का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से आप उसको जो लिनक्स का जो फ्लेवर है वो डाउनलोड करना, डाउनलोड जिप फाइल डाउनलोड होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट विंडोज में एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद में जो भी जितना भी फोल्डर्स है वो पूरे फोल्डर्स कॉपी करना है आपने इस मेमोरी कार्ड में। ठीक है, ये मेमोरी कार्ड है, इस मेमोरी कार्ड में आपने पूरा फोल्डर कॉपी कर लेना है, पूरे फोल्डर जितने भी आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं। फिर उसके बाद में इस कॉपी करने के बाद में इस मेमोरी कार्ड को आपको यहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ इंसर्ट होगा। देन पावर सप्लाई कनेक्ट करना है यहाँ पर, इसको 5 वोल्ट यूएसबी माउस आप कनेक्ट करोगे, डिस्प्ले कनेक्ट कर लोगे, और यदि वायरलेस कीबोर्ड माउस है तो आपको डोंगल लगाना पड़ेगा वायरलेस वाला। देन जो स्क्रीन पे आपको जो भी मैसेजेस आएंगे उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको फुल वर्जन डाउनलोड करना है या फिर और भी लाइट वर्जन भी है, उसमें 2 3 ऑप्शंस आते हैं, लाइट वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, सो shall we move further? Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स पे आ रहा हूँ। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर। जैसे अब मैंने एक यहाँ पर एक फाइल है जो कि मुझे रन करना है। एक ये GUI है, इस GUI बेस पे
अब मैंने कुछ हार्डवेयर पे मैं इसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अब यदि ये एलईडीज है, मैं एलईडीज को मुझे ऑपरेट करना है, और जैसे मैं जो ऑपरेट करूंगा यहाँ पर उस हार्डवेयर पे भी आपको एलईडी ऑन दिखाई देगी. अब मैं थोड़ा सा कैमरा मूव करूंगा मेरा, ये मैंने क्लिक किया D7 पे, तो यू कैन सी ऑन हार्डवेयर, तो ये D7 की एलईडी ऑन हो गई है. ठीक है. इफ आई क्लिक हार्डवेयर पे, देखिए D6 ऑन हो गई है. वैसे ही ओके. देखिए यहाँ स्विच प्रेस कर रहा हूँ हार्डवेयर में, तो यू विल गेट द ग्रीन कलर. ठीक है. देखिए यहाँ हार्डवेयर में स्विच प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है. The same way I can perform the motor experiments. The same way I can perform the color LCD experiments. Like if तो आपके हार्डवेयर पे देखिए इमेज ये दिखाई देगी. सेम इमेज यू कैन सी ऑन माय हार्डवेयर. और यदि मुझे इमेज करना है तो आई कैन सिलेक्ट द इमेज फ्रॉम ये देखिए कलर है, इस हिसाब से कलर यहाँ पर इमेज है. Okay. The same way you can perform the experiments. GSM, you can interface the GSM. You can perform ADCs RS485. तो ये जो चीजें यहाँ पर है, ये आपको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए एक ये एक GUI बनाया हुआ है. ठीक है. कि मेरे पास में नोड है, तो दिस वायरलेस नोड, ये नोड में यहाँ पर पोर्ट्स, आर यू एबल टू A B C D E as I was telling about this wireless sensor node. This wireless sensor node having the ports port A, B, C, D, E. In that you can connect the sensors. So sensors, you can plug the sensors like this. I will show you the sensors. So like I'm having the sensors. Okay, soil moisture sensor, and easily you can plug with this connector to this port, any port. Okay, and
this having charging port. Either you can connect solar panel, you can use the solar panel for charging it. Either you can use the battery or sorry, a charger, that is 5-volt charger. So we will provide one cable, DIN USB to DIN cable. So with the help of that cable, you can easily charge this node. So and this one is the LED indicator, and this one is the on-off switch. So this basically, this node is battery operated, which having the ZigBee. तो ये जो नोड है, ये नोड वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट करेगा इस प्लेटफॉर्म को, 6205 का जो प्लेटफॉर्म अभी हम जिस पे वर्क कर रहे हैं, उस पे ये डाटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, इधर मेरे पास में भी इस हार्डवेयर में, यदि आप देखोगे इस हार्डवेयर में भी मेरे पास में ZigBee लगा हुआ है। आर यू एबल टू सी दिस वन? ये ZigBee है, ये ZigBee, दिस इज वन कोऑर्डिनेटर। दिस USB केबल, दिस वन। ओके, तो क्या होगा कि ये वायरलेस सेंसर नोड जो है वो डाटा ट्रांसमिट करेगा इस कोऑर्डिनेटर को यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो भी GUI क्रिएट किया हुआ है, so with the help of that GUI you can observe the census data and you can send the data on cloud as well। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको किस तरीके से होगा ये। For that you have to, first of all you have to switch on this node। देखिए स्विच ऑन किया, एक रेड LED ब्लिंक हो रही है, एंड ऑन माय टर्मिनल, on my Linux platform, I have created one application that is to collect the census data node, and I have to execute it in terminal. So see here, so now, so it's successfully connected and now it's ready to communicate and it's accessing the data। तो देखिए अब ये जो डेटा आ रहा है मेरा रॉ फॉर्म में डेटा आ रहा है। ठीक है, माइट बी यू हैव सीन, बहुत सारी कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी आपको। हेलो सर। हाँ हेलो सर, वन डाउट सर। हाँ हाँ सर, ये वाला जो आपने नोड, IoT नोड और ऐप को कैसे पेयर किया, इंटरफेस कैसे किया आपने? ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस वायरलेस सेंसर नोड में आपका ZigBee लगा हुआ है इसमें, है ना? हाँ, इसमें ZigBee है। तो ये जो ZigBee है ये कहाँ कम्युनिकेट कर रहा है? मेरे इस हार्डवेयर में। आपके हार्डवेयर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक इसमें ZigBee है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ZigBee इज रिसीविंग, दिस ZigBee इज रिसीविंग, ये ZigBee रिसीव कर रहा है। ठीक है, ओके। और ये नोड में डाटा कहाँ से आएगा? पर नोड पे डाटा कैसे आएगा? नोड में डाटा ये इस पोर्ट के थ्रू आ रहा है ना? इस पोर्ट में यदि हम सेंसस जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, अभी क्या हुआ कि मैंने कुछ भी अभी कनेक्ट नहीं किया तो एक डमी डेटा आ रहा है मुझे कंटिन्यूअसली। ठीक है, और प्रॉपरली यदि मैं सेंसर्स कनेक्ट करूंगा तो जैसे हमने अभी ऑर्डिनो के केस में देखा था ना, एनालॉग वैल्यू, जब कुछ कनेक्टेड नहीं था तो कोई एक रॉ वैल्यूज, कुछ गार्बेज वैल्यूज आ रही थी मुझे। और जब हमने उस पर पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है तो एनालॉग वैल्यू, तो उस पोटेंशियोमीटर के एडजस्टमेंट से, उसकी डायरेक्शंस के एडजस्टमेंट से वो फिर अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गेट द एनालॉग वैल्यू, द सेम थिंग। तो ऑल दीस आर so sir, according to you, sir, this node, this IoT node is connected with the another ZigBee module which is connected with the Raspberry Pi, and Raspberry Pi is connected with the application that you made. Yes, exactly. So final block is IoT node. First node is your Raspberry Pi, second is application, third one is node. Yes. हाँ, यदि हम रिवर्स में बात करेंगे तो सबसे पहले हम नोड की बात करते हैं IoT में,
है ना। हाँ जी। सेंसर मतलब पहले सेंसर, यस यस यस। हाँ इसके पहले ये सेंसर्स आएगा जो कि Yes. मैंने यहाँ इस पे कनेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेंसर कनेक्ट किया है, यस ठीक है, सर। ये हो गया सेंसर, यस ठीक है। यस ये सेंसर, देन नोड, वायरलेस नोड, ये ट्रांसमिट किया इसने इसने यस इसका बेस्ट या फिर कोऑर्डिनेटर बोलेंगे हम इसको। यस ZigBee सर। ने इसको रिसीव किया, ये यहाँ यस पर सर। मैंने रास्पबेरी पाई, और इस रास्पबेरी पाई में ये जो मैंने बनाई है अभी, है ना, यस सर। यस सर। मैं यस अभी सर। इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो ये एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल है ना। इसके यस पहले सर। वाले जो एग्जाम्पल में हमने एक सी फाइल बनाई थी, याद है आपको, टेस्ट यस डॉट सर। सी यस नाम सर। से, है ना। यस सर। यस सर। तो उसको हमने कंपाइल किया और उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई टेस्ट वन नाम से या फिर फर्स्ट प्रोग्राम नाम से, और उसको मैंने रन किया तो मुझे वो आउटपुट मिला। तो सेम वे यस सर। we have created the applications and I have execute this binary files, ये बाइनरी फाइल कहलाती है। तो ये बाइनरी फाइल मैंने रन किया तो मुझे ये क्या हो रहा है कि ये जो भी वायरलेस सेंसर नोड से जो भी डाटा कलेक्ट होके मुझे ये टर्मिनल पे शो कर रहा है। ओके सर। ओके ओके। है ना? गेटिंग गेटिंग। जैसे हमने पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी हमने देखा था कि यू विल गेट द रॉ डेटा। सो ये जितना भी मैंने अभी हाईलाइटेड किया ना, ये रॉ डेटा है ना। इस रॉ डेटा में इंफॉर्मेशन क्या है, दैट आई विल शेयर यू, जस्ट अ मिनट। मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन देख पा रहा है मेरी? यस सर। हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रॉ डेटा जो है, इट हैज सम मीनिंग, है ना। हाँ ठीक है, इस टाइप से आपको स्क्रीन पे कुछ डेटा दिख रहा था। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या किया है कि जो भी हमारा नोड का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, you able to see my video? इसमें देखिए एक पर्टिकुलर नोड, एक एड्रेस लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो दिस इज ए जिग्बी एड्रेस, एक जिग्बी का एक एड्रेस है, पर्टिकुलर एक एड्रेस है। तो ये एड्रेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस नोड से मुझे ये डेटा आ रहा है, राइट। यहाँ पर ये पूरा एक स्ट्रिंग का है, इसमें मैंने हेडर रखा है, लेंथ रखी है इसमें, ये सब एक प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए हुए हैं हमने कि ये जो डिफाइन, ये जो डाटा एड्रेस जो आ रहा है, एक्चुअली अब हम एक्चुअल इसमें देखेंगे हम। I'll come to my screen, this one. Are you able to see this this one, this number 13A 20041985383? Are you able to see? ये मेरा Yes, sir. पर्टिकुलर Yes, sir. नोड का एड्रेस है।
ये नोड का एड्रेस ये देखिए इसमें आ रहा है। देन इसके बाद में फिर जो पोर्ट्स पे सेंसर्स पोर्ट पे मैंने कनेक्ट किए हैं वो सेंसर्स के डेटा आ रहा है आपको, है ना। ये जो सेंसर्स का डेटा आ रहा है मुझे ये पूरा रॉ फॉर्म में ये डेटा आ रहा है, और यहाँ पर मुझे किस नोड से डेटा आया है उसका ये डेटा है, ये वाला टी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, ठीक है। अब इसको एक रीडेबल फॉर्म में मुझे बनाना है। तो रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए मैंने जो भी हमने अभी तक देखे थे कुछ लैंग्वेजेस, तो उसका यूज करके मैं किसको एक रीडेबल फॉर्म में यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसको रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए एक मैं लोकल होस्ट डैशबोर्ड नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि हमने बनाई है लैंग्वेजेस को यूज करके, जो कि हम आने वाले सेशन में देखेंगे। लोकल होस्ट IoT डैश है ना, तो इसमें हमने जितने भी अभी नोड कनेक्टेड किए हैं वो डेटा, ये सारे नोड्स अभी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं चेकिंग के लिए, तो इतने सारे ये नोड्स इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए वो रजिस्टर्ड है, तो इसलिए ये आपको इतने सारे नोड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें मेरा जो नोड का जो एड्रेस है ये वाला है, ये देखिए आज के डेट में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कि आज रजिस्टर अभी हुआ है 3:37। ये देखिए आप, यदि इसको टाइमिंग यदि आप देख पा रहे हो और इसका यदि एड्रेस देख पा रहे हो तो ये वाला है मेरा नोड, ठीक है। ये तो ये एक रीडेबल फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें पोर्ट की वैल्यू अब ये एक्चुअली ओपन है, इसलिए आपको इसमें कुछ सारी जो वैल्यूज जो है वो गार्बेज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर पोर्ट 0, पोर्ट A, B, C, D, E, देन उसके बाद में ये रिलेज है, तो जो रिलेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे LEDs को, LED को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन मोटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन मोटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ रोटेट कर सकते हैं। ये सारी ये जो एप्लीकेशंस बनी है अब ये रीडेबल फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यदि मैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स मैं इस डिवाइस में कनेक्ट करता हूँ, so I will connect temperature and humidity sensor. टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर मैंने कनेक्ट किया है। और यदि मैं नोड की वैल्यू देखूंगा तो देखिए आपको यहाँ जो T दिखाई दे रहा है ना, T और H, दिस इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले यदि आपको इसको इस GUI पे रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए अब हमको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इस नोड को, वायरलेस सेंसर नोड को हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक टूल बनाया हुआ है, मैं इसको पहले क्लोज करता हूं कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन टूल। सो वायरलेसली आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू टेक आउट, यदि आपने कहीं डिप्लॉय किया है इसको देन देयर इज नो नीड टू टेक आउट दिस नोड from there and easily you can configure with the remotely. So for that यहाँ पर मैं
जो मेरा कोऑर्डिनेटर मतलब टेक्स्ट बुक में जो ZigBee किस पोर्ट से कनेक्टेड है वो कनेक्ट करूंगा. Then I can use the remote node. In that remote node, you should know about this ID. उसका जो ID है वो आपको यहाँ डालना होगा 00138 1382 004 2004 19A 5383. Okay, and I can read this one. Now whatever the parameters, it will read out and it will show on this blank tab. Blanks जहाँ पर भी है तो मुझे शो होंगे. If I correctly write it 00138 200419A5 yeah, okay. ये देखिए ये मुझे एक यहाँ पर डेटा मिल गया है. आई थिंक सो आर यू एबल टू सी दिस माई इन माई कैमरा. तो डेस्टिनेशन एड्रेस में जो कौन से डेस्टिनेशन एड्रेस से ZigBee कोऑर्डिनेट करेगा उसका एड्रेस जो कि करेक्ट है. ये जो एड्रेस वाला जो ZigBee है वो मेरे टेक्स्ट बुक में लगा हुआ है. यहाँ पर हम टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ पर हमको कौन सा सेंसर हम कनेक्ट कर रहे हैं दैट यू कैन सिलेक्ट इट ओवर हियर ऑन दिस पोर्ट. सर हाँ हाँ सर एक छोटा सा डाउट है. हाँ सर जो हमारा नोड वाला ZigBee है और जो हमारा रास्पबेरी पाई के साथ जो ZigBee कनेक्ट है, हाँ. जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है वो सर आईडी के थ्रू कर रहा है या फिर वाईफाई के थ्रू कर रहा है? नहीं वो खुद का प्रोटोकॉल है ना ZigBee का, वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहा है. ZigBee प्रोटोकॉल पे हाँ ZigBee प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेट हो रहा है ना. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम ZigBee को हमको कम्युनिकेशन करवाना है तो इसको एक्चुअली आपको पेयरिंग करवानी पड़ती है. पेयरिंग इन द सेंस एक सॉफ्टवेयर है XCTU नाम से, ठीक है. माइट भी आपने शायद सुना होगा नहीं होगा पता नहीं. तो XCTU को यूज करके हम सबसे पहले इसको पेयरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना, कि कि आपस में कैसे कम्युनिकेट होगा, कौन से दो कोऑर्डिनेट होंगे, उसको किस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करवाना है 9600 बॉड रेट पे या जो भी आप सेट कर रहे हैं. तो सबसे पहले वो सेटिंग करनी पड़ती है. फ्रेश आप ZigBee लोगे तो वो कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा, है ना. तो आपको क्या करना होगा कि जब भी आप मार्केट से ZigBee लोगे तो वो उसमें कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं रहते हैं, है ना. उसका पैन आईडी वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, 00 रहता है. वो आपको डिफाइन करना पड़ता है. जैसे अब मेरे यहाँ पर पैन आईडी मैंने डिफाइन किया है 6205, है ना. तो ये सर ये ले सकते हैं हम कुछ भी वैल्यू, एनी वैल्यू? हाँ, ये आपको हेक्साडेसिमल में आप कुछ भी दे सकते हो. ओके, है ना, हेक्साडेसिमल वैल्यू कुछ भी दे सकते हो आप. ठीक है. तो ये जो पैरामीटर्स ये जो आए हैं ना, तो ये कहाँ से आए हैं, ये मैंने अभी मेरे ZigBee में मैंने सेव करके रखे हैं XCTU सॉफ्टवेयर के थ्रू. और उसके बाद हाँ उसके बाद में किससे कम्युनिकेट करवाना है तो वो भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ XCTU में, ठीक है. अब मैंने क्या किया कि ये वोल्टेज फॉर्म में मैंने इसको सारे वोल्टेज फॉर्म में मुझे चाहिए तो मैंने इसको लिख के और यहाँ पर मैं टाइमिंग भी डाल देता हूँ. टाइमिंग अभी का क्या है, सर एक छोटा सा और डाउट है. हाँ सर जैसे हम बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग बोल रहे हैं, हाँ. तो यहाँ पर इंटरनेट का कहाँ पर यूज हो रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है. ओके अभी क्या हो रहा है कि हम सब सारी चीजें लोकल देख रहे हैं, ठीक है. ओके अभी सारी चीजें हम लोकल देख रहे हैं पर जब हम अब हमको इसको इंटरनेट के थ्रू इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना. अभी हमने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है इस डिवाइस को. नाउ इट्स गोइंग टू राइट. एक्चुअली क्या है, ये स्लिप पोर्ट में भी जाता है ना. तो देखिए आप कभी थोड़ा सा ब्लिंक होता हुआ दिखाई देता है ये नोड. तो जब ये कम्युनिकेट हो जाएगा इससे तो ये राइट होके
जो रीड राइट जो है वो एनेबल हो जाएंगे, अभी डिसेबल है। अगेन आई विल स्टॉप एंड राइट। ये राइट हो गया, ठीक है। अब हम उस एप्लीकेशंस पे आते हैं। वो एप्लीकेशंस आपको रन करनी होगी। जैसे मेरी ये एप्लीकेशन है ना, नोड सेंसर लोकल डेटा, ठीक है, और नोड सेंसर रिमोट डेटा। अब यदि मैं लोकल चला चला रहा हूं तो मुझे ये एप्लीकेशन मुझे ऑन करनी होगी। ठीक है, ये डेटा आ गया है मुझे, और मैं यदि यहाँ पर देख रहा हूँ, सो इस डैशबोर्ड में आपको टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी देगा। आई थिंक कुछ ठीक है, माइनस में आ रहा है ये। समथिंग मैंने कुछ गड़बड़ की कॉन्फ़िगरेशन में। सो लाइक दिस यू कैन यूज दिस वन। सर अभी गार्बेज ले रहा है, गार्बेज वैल्यू, हाँ गार्बेज वैल्यू ले रहा है अभी माइनस। हाँ हाँ, और मैंने शायद सेंसर नहीं कनेक्ट किया ना अभी इसमें। ओके जस्ट मिनट, मैं सेंसर कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब पॉजिटिव आ गई है ना। सेंसर एक्चुअली मेरा ओपन था, इसमें मैंने सेंसर कनेक्ट नहीं किया था। ठीक है, ये टेम्परेचर वाला सेंसर है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाला, ओके सर। है ना। तो इसलिए वो माइनस में आ रहा था। अब यदि मैं इसको थोड़ा हीट करूंगा कुछ, उस हिसाब से वो टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैं एक GUI रेडी क्रिएट कर रहा हूँ। अब यदि मुझे रिमोटली चाहिए तो मुझे यहाँ इंटरनेट इसको प्रोवाइड करना होगा। तो देर आर 2-3 ways to provide the internet with the help of Ethernet cable. Either you can use the Wi-Fi or either you can use the GSM. So let me try with Wi-Fi. मैं Wi-Fi से ट्राई करके कोशिश करता हूँ मैं। एक मिनट। जस्ट अ मिनट। तो जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वाईफाई से कनेक्ट करने की, देखते हैं होता है क्या। I'll check. It's not connected to my Wi-Fi. It's not connected to my Wi-Fi. So just a minute, I'll check it out. Slash config. Okay, dash config. Sudo.
option Wi-Fi. Just a minute. Let me check. मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ कि मेरा वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. Okay. Now जैसे मैंने अब ये लोकल वाली एप्लीकेशन चलाई थी ना, तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ. देन आई विल रन दिस नोड सेंसर रिमोट डेटा. लेट मी चेक. सी हियर, अब ये जो है इंटरनेट से अब ये कनेक्टेड हो गया है. ठीक है. अब यदि मैं इसका यूआरएल देखूंगा, मैं आपको यूआरएल बता रहा हूं मैं. सर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया क्या? हाँ, ऑटोमेटिक. ये मैंने एक्चुअली इसको नेट कनेक्ट किया है वाईफाई के थ्रू. मैंने कहा था 3 ways यू कैन गिव द इंटरनेट. आइदर यू कैन यूज वाईफाई, आइदर यू कैन यूज इथरनेट, और यू कैन यूज जीएसएम. तो अभी मैंने क्या किया कि वाईफाई से मैंने इसको कनेक्ट किया है, और मैंने इस पे एक रिमोट नोट वाली एप्लीकेशन रन की है. ठीक है. तो सर इसमें कोई पेयरिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए? पासवर्ड से नहीं, पासवर्ड डालने हाँ, के तो ये अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया ना. अभी जस्ट अभी आपने शायद देखा होगा मेरे स्क्रीन पे मैंने आरपाई कॉन्फ़िग लिखा. तो हाँ, देन मैंने उसको एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में गया, आरपाई की कॉन्फ़िगरेशन में गया. वहां पर मुझे ऑप्शन आया नेटवर्किंग वाला, नेटवर्क वाला सिलेक्ट किया मैंने. SSID डाला आपने? हाँ, यस, SSID डाला, जो कि जिससे भी मुझे रिमोटली कनेक्ट करना है मैंने SSID डाला और पासवर्ड डाला. एंड देन पासवर्ड डालने के बाद में मैंने उसको वो किया, कनेक्ट किया है. ठीक है. तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर. यदि देखिए आप, यदि आपका मोबाइल यदि आप चला रहे होंगे तो आप ब्राउजर पे आप यूआरएल लिखिए iotbuilder.in/iot-rp. मैं एक चैट बॉक्स पे लिखता हूं सो दैट यू कैन सी द नोड्स. मैं चैट बॉक्स पे लिख रहा हूं, आपको क्या टाइप करना है. आपके मोबाइल पे जो भी ब्राउजर है IoT, IoT बिल्डर स्मॉल लेटर्स में, IoT builder dot in slash IoT slash TASH minus RP. Just you can write this one on your mobile. Yes, anyone is trying? Yes sir, IoT dashboard is opening and sir note opening Syntec IoT builder. बहुत सारे नोड आ गए हैं. बहुत सारे नोड आ गए ना. तो उसमें से इस नोड में अब आपको मैंने जब भी जो एक्चुअली इतने सारे नोड्स हमारे ये रजिस्टर्ड है इस IoT में, तो इसमें से अब हमारा वाला जो नोड है उसका एड्रेस मैं बता रहा हूँ, लास्ट में 383 है ना. और आज के डेट में देखिएगा. ओके. तो 2017 से आ रहे हैं. तो सबसे नीचे आ रहा है, ये देखिए, ये वाला है ना. यस सर, यस. इसमें लास्ट में आ रहा है D9 है. हाँ, सबसे लास्ट में आ रहा है
सबसे लास्ट में उसका जो मतलब जो पूरा एड्रेस है 0013820041985 383 आज की डेट और टाइमिंग भी आ रहा होगा उसमें, यस सर, यस सर, यस है सर, ना? मिल गया सर। हाँ, तो अब ये जो है ये कनेक्टेड हो गया अब इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अब Okay. यदि मान लो अब आप सर अभी क्या करना है? अभी देखिए ये जो है ये डैशबोर्ड है, ठीक है। यस सर। अब ये डैशबोर्ड है, कैन यू स्क्रॉल, आपने ओपन किया जो मैंने आईडी बताया है? हाँ जी सर, ओपन किया, बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं मेरे पास, और 5 सर 3 लास्ट। नहीं नहीं, जो एड्रेस बताया मैंने वो वाला नोट पे क्लिक कीजिए, तो अच्छा। अभी हम जिस नोट पे काम कर रहे हैं ना उसी का डेटा आएगा फिर अभी। ये हाँ, अब आप जो रिले नंबर 8 है उसको ऑन कीजिए, एक ही जना कोई भी एक ठीक है, ऑन आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। ओके ओके ओके। अंकित। हाँ जी सर, मैंने किया। 1 कीजिए, 1 ओके सर, 1 हो गया है। 1 हो गया, फिर ऑफ हो गया है, और एक कर्सर, एक स्क्वायर बना आता है, उसके बाद हाँ, फिर वो हाँ। हट जाता है। ठीक है, अब ऑफ कीजिए। किया सर, कर दिया है वो। हाँ हाँ, कुछ समय लेगा वो अपडेट करने के लिए। देखिए अब हार्डवेयर पे आप देखिए, जो सर हाँ अभी देखिए जो थोड़ा सा समय लग रहा है इसको अपडेट करने के लिए। जैसे अब रिले नंबर 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलईडीज को, है ना, D0 रिले 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो D7 है वो रिले नंबर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला मेरा 8 है, यस सर। और इस तरफ वाला है रिले नंबर 1 है। ओके। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि इस डिवाइसेस को आप वहां से एक्सेस कर रहे हो आप आपके नेट के थ्रू। ओके, आईपी के थ्रू। हाँ, ये अब मेरा मतलब क्लाउड पे डाला है ना मैंने ये डाटा, और क्लाउड का यूआरएल आपसे शेयर किया है मैंने, अच्छा। और हाँ उस क्लाउड पे गया है डाटा, और उस क्लाउड से फिर आपको यूआरएल देके फिर मैंने आपको ये चीज एक्सेस करवाई है, ओके सर, ओके। है ना। सर तो सर हाँ, आपने जो नेट कनेक्ट किया है वो नोड से किया है या रास्पबेरी पाई मॉड्यूल से नहीं, किया है? रास्पबेरी पाई में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप इथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो इसमें। ये जो मेरा रास्पबेरी पाई जो है इसमें आप इथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जीएसएम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वाईफाई के थ्रू आप नेट दे सकते हो इसको। मींस जो नोड है वो जिगबी से ही कनेक्ट है। हाँ, नोड तो जिगबी से कनेक्टेड है, वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट हो रहा है नोड से, और जो कि ये कोऑर्डिनेटर जो ये वाला जो जिगबी है ये जिगबी रिसीव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ मैंने एप्लीकेशन जो चलाई है आरपाई में एप्लीकेशन चला के वो मैंने डेटा क्लाउड पे भेजा है। हमारा जो यूआरएल है iotbuilder.in, इट इज इन पेड वन, तो इस IoT इसका पूरा जो डेटा है वो मैंने वहां सेंड किया है। सही, आपने क्लाउड पे कैसे सेंड किया है डेटा को? एक्चुअली ये जो है मैंने एक नोड यहाँ पर एक एप्लीकेशन चलाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने लोकल की ये चलाई थी जो कि लोकल डाटा दिखाई दे रहा था आपको, और क्लाउड पे भेजने के लिए ये वाली एप्लीकेशन चलाई थी मैंने। अब ये एप्लीकेशन एक्चुअली बाइनरी एप्लीकेशन है, इसमें आपको कोड नहीं दिखाई देगा, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रोग्रामिंग में देखा था कि हमने टेस्ट जो फाइल थी test.c, है ना, तो test.c से हमने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई थी test1, और उस test1 को रन किया था तो हमको क्या मिला था, हमको यू विल गेट द आउटपुट साइनटेक। द सेम वे जो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है उस एप्लीकेशन की ये बाइनरी फाइल है, उसको रन किया ऑटोमेटिकली जो भी सेंसर्स का डेटा जो नोड से कलेक्ट हो रहा है इस जिगबी के थ्रू वो डाटा ट्रांसफर कर रहा है क्लाउड पे। ये हार्डवेयर मिलेगा आपको, 2 नोड्स, सोलर पैनल, ये सेंसर्स, इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी,
सॉइल मॉइस्चर, PIR, है ना, कीबोर्ड माउस, ये सब सारी चीजें आपको मिलेगी, अडेप्टर्स, ये सारा सेटअप है इसका, है ना। और एक्सपेरिमेंट्स में बता रहा था आपको, ये इस टाइप से सारे ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 34 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हमने करके दिए हैं। सो आप और भी डेवलपमेंट आप इसमें कर सकते हो, है ना। मोटर, स्टेपर मोटर, ये सारी चीजें हमने इसको इसमें एक्सप्लेन की है। आई थिंक क्लियर है चीजें। Yes, sir. Yes. ओके ओके।